Hi everyone, welcome to Clat Waves. I hope you all are having a great day. This just as a guiding tool. मैंने subject wise time नहीं, for an example, आपको fundamental mocks and analysis. And the topic for today's session is going to be how to clear backlogs. So many of you guys have been preparing for CLAT for quite a few months now, and it's natural to have a few topics that you have not studied properly yet, and it has taken the form of a backlog. So in today's session, we are going to be talking about various strategies that you can use to clear the backlogs. So the first question that I will be answering is a very big one. It is why that you should clear backlogs. क्यों आपको अपने backlogs को clear करना है? So now I will be talking on a very personal level. It is that जब आपके backlogs होते हैं, तब आपको एक mental basis पे एक burden feel होता है that I have so many things to do. मैं कैसे manage करूँ सब चीजों को? Will I be able to score well? मेरा इतना पढ़ाई करना है. How will I be able to do all these things? So it does create a mental burden, and it most certainly affects your confidence too. आपके confidence को affect करता है. Naturally आपके scores and पढ़ाई पे भी वो show होता है. So after following some of the strategies in this video, you will have a clear backlog, and because of that clear backlog, आपके मन में एक clarity आ जाएगी that yes, these are the topics that I have to do. I have a structured method on how to do it. And जब आपके वो topics clear होने लगेंगे, आपके मन में confidence भी build होने लगेगा that yeah, I can do this. Now I am clearing out most of the backlogs. अब मेरी पढ़ाई अच्छे flow में जा रही है. I'm getting in the groove. And even better, आपके scores भी improve हो जाएंगे. Okay, your scores will also see a very big improvement in them if you are studying properly, and आपका score बहुत अच्छा आएगा. So here is an overview of all the strategies that we will be covering. The first is identify and categorize. I will talk about these in detail later. The second is time blocking. Third, I will give a subject-wise strategy and a list of high priority topics that you can refer to. And fourth, I will be talking about your mocks and analysis approach. So the first strategy that we will be talking about is identify and categorize. अब आपको क्या identify करना है, क्या categorize करना है? You have to identify the topics that are left to study. Okay, how will you do that? You will sit with a topic-wise syllabus. If you don't have a topic-wise syllabus, you can find one at ClatWaves on Telegram. Okay, we will provide a topic-wise syllabus to refer to, and then you have to sit with that syllabus and you have to mark all the topics जो आपको पढ़ने हैं या फिर आप पढ़ चुके हो but आपका confidence उनमें low है. You have to mark all those topics. Okay, and after marking all of those topics, आपको उन्हें categorize करना है 3 सब topics में. The first category is the high priority topics. Now these are the topics जो काफी पूछे जाते हैं and आप उनमें weak हो या आपको confidence नहीं है. Okay, so these are those topics. Now why I am highlighting the fact that आपको वो भी topics mark करने जिनमें आप weak हो, because just take for an example, आपको fundamental rights बहुत अच्छे से आते हैं. Okay, you have been scoring well, you're very confident and well versed with the topic. Now I will agree that yeah, fundamental rights is a frequently asked topic. So therefore it should be high priority in your backlogs, right? No, even though fundamental rights is a frequently asked topic, अगर आप उसमें confident हो, then it shouldn't be in your backlog, right? If you are confident in them, then it will become a low priority in terms of the backlog. राइट, सो द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स विल बी द वंस जो पूछे भी जाते हैं काफी बार एंड आपको उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है. ओके, सो हाई प्रायोरिटी विल बी दिस. मीडियम प्रायोरिटी आई फील लाइक आप समझ गए होंगे, इनकी वेटेज भी मॉडरेट होती है एंड आप ठीक ठाक हो उनमें. यू आर नॉट दैट ग्रेट बट यू आर नॉट पुअर इन देम ईदर. ओके, यू आर स्लाइटली कॉन्फिडेंट इन दीज टॉपिक्स. द थर्ड कैटेगरी इज द लो प्रायोरिटी टॉपिक्स. नाउ द लो प्रायोरिटी टॉपिक्स आर ईदर द वंस जो पूछे ही नहीं जाते हैं, दे आर वेरी रेयरली आस्क्ड, या फिर यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड डिसेंट इन दीज टॉपिक्स. अब रेयरली आस्क्ड में फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड सीक्रेट्स. अब ट्रेड सीक्रेट्स इज अ टॉपिक ऑफ आईपीआर जो क्लैट में बहुत रेयरली पूछा जाता है एंड आई थिंक पूछा ही नहीं जाता है. सो आप ट्रेड सीक्रेट्स तो आप पढ़ने नहीं बैठेंगे. अगर आपका टॉट लॉ का बैकलॉग है, आप ट्रेड सीक्रेट्स तो नहीं पढ़ाई करेंगे, राइट? सो दिस इज अ वेरी लो प्रायोरिटी टॉपिक. इट्स अ रेयरली आस्क्ड टॉपिक. और द टॉपिक्स इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल दिया, आप उनमें कॉन्फिडेंट हो, यू आर डिसेंट, देन इट शुडंट बी अ हाई प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ द बैकलॉग. प्लीज पे अटेंशन दैट मैं बैकलॉग के टर्म्स में बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी. ओके, द सेकंड स्ट्रेटेजी दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज अ टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटेजी. मतलब over here I will be giving you tips on how to manage your time. आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है. सो अब आपने क्या कर लिया है, यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द टॉपिक्स, आपने उन्हें कैटेगरीज भी दे दी हैं दैट मुझे पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, लेकिन आपको कब पढ़ना है. नाउ यू विल टॉक अबाउट दैट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज डिवाइड योर डे इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विल बी अ बैकलॉग क्लियरिंग स्लॉट एंड द सेकंड विल बी अ फ्रेश प्रिपरेशन स्लॉट. अब ये जो 2 पार्ट्स वाला सिस्टम है, दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. इफ यू आर अ ड्रॉपर देन यू विल नेचुरली हैव मोर टाइम इन योर हैंड्स, राइट? क्योंकि you guys may not have school and stuff to attend, जहाँ पे आपको attendance देनी ही होती है या फिर exams आ रहे होते हैं, things like that. So your day will have more hours to it in terms of the CLAT preparation, right? And जो school students हैं, उनके पास थोड़ा कम time होगा, but still you guys can efficiently manage the prep and clear the exam if you divide your day in proper parts. So अब आपका जो backlog clearing slot and fresh prep slot है, I'll just give an example to highlight how you can divide it. अब for example आपका total दिन में studies का time कितना है? 5 hours. आप school जा रहे हो, सब कर रहे हो, you are resting for some time and बाद में you are seeing that आपके पास total CLAT preparation time, not school prep or anything else, CLAT preparation time आपका 5 घंटे का है.
उस 5 आवर्स को आप एक बैकलॉग क्लियरिंग स्लॉट में डिवाइड करो एंड एक फ्रेश प्रेप स्लॉट में डिवाइड करो। अब जरूरी भी नहीं है दैट आपको 5 डिवाइडेड बाय 2 ही करना है, हाँ 2.5 घंटा बैकलॉग 2.5 घंटा फ्रेश प्रेप। नो, यू कैन डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू यू नो हाउ मच बैकलॉग यू हैव। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो आप 4 आवर्स दे सकते हो बैकलॉग को एंड 1 आवर अपनी फ्रेश प्रेप को दे सकते हो, या फिर यू कैन गिव 3 आवर्स टू द बैकलॉग, 2 आवर्स टू द फ्रेश प्रिपरेशन। इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच बैकलॉग यू हैव एंड आप अपने बैकलॉग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय दिस ट्रिक। नेक्स्ट, आपका जो बैकलॉग क्लियरिंग स्लॉट है उसको आप फर्दर सब्जेक्ट वाइज टाइम दोगे। ओके, अब मान लो मैंने 2.5 आवर्स ले लिए बैकलॉग क्लियर करने के लिए, दिस इज माय बैकलॉग क्लियरिंग स्लॉट। ठीक है, 2.5 आवर्स हो गए। अगर मैंने सब्जेक्ट वाइज टाइम नहीं डिवोट करा, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, मान लो मैंने 2.5 घंटा सिर्फ लीगल पढ़ा एंड उसमें भी मैंने 2 टॉपिक्स ही करे, वॉज दिस अ वेरी प्रोडक्टिव डे? बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे। आपको अपने बैकलॉग क्लियरिंग टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है। नाउ इट कैन डिपेंड ऑन हाउ मच बैकलॉग यू हैव ऑन द सब्जेक्ट वाइज बेसिस ऑल्सो। अगर आपका मैथ्स में कम बैकलॉग है तो उसको कम टाइम दो, लीगल में ज्यादा बैकलॉग है तो लीगल को ज्यादा टाइम दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो। ओके, इफ यू विल टेक ऑल द सब्जेक्ट्स देन ओनली योर बैकलॉग विल एक्चुअली गेट क्लियर्ड। Now, here is a subject wise strategy on how you can approach it. And we also have a list of high priority topics. I have given a list over here. If you need an idea that concept topics बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, you can refer to this. Now, the strategy that you have to apply is first you have to clear the concept. You can clear the concept by watching YouTube videos or reading and revising your old notes. अगर आपने notes नहीं बनाए तो आप YouTube videos देख लो, concept को clear करो. Second, you have to apply the concepts by practicing the sectional test. Okay, you have to read the passages and you have to apply all the knowledge that you have studied. अब जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, नेचुरली यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड ऑल्सो। दिस स्पीड इंप्रूवमेंट विल गो इन द प्रैक्टिस स्लॉट। Okay, so this is done. Next, we will move on to current affairs and GK. Now, current affairs and GK is a star topic. Most बच्चों का बैकलॉग करंट अफेयर्स में ही होता है. Now, since not a lot of time is left, I would highly suggest that watch the monthly recap videos that are there on YouTube or short YouTube videos that are uploaded, like you know, for the topics. जैसे वक्फ अमेंडमेंट है, उस पर टॉपिक वाइज वीडियोस आपको सेपरेटली मिलेंगे, आप उनको रेफर करो. ओके, डोंट सिट विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज नाउ. ऑल्दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पढ़ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर प्रिपरेशन. अब अगर आप इंडिविजुअल सोर्सेज लेके बैठोगे, देन योर टाइम will not be in your hands, it will not be in your support, so you have to make the best of the time. I would highly suggest time बचाने के लिए and you know अच्छी खासी पढ़ाई करने के लिए आप मंथली रिकैप वीडियोस ले सकते हो. Here is a list of all the major themes that are mostly asked in CLAT. अब अगर आप मंथली रिकैप वीडियोस पढ़ रहे हो, if you are not doing any revision, I say this again and again in videos and in sessions that you have to revise the topics on a weekly basis. आप हफ्ते में एक दिन भले ही पूरा जीके रिविजन को दे दो तो दे दो, no problem in that. If you are not revising anything, then there is no point of studying at all. Next subject is English. English में these are some topics that are asked frequently in the examination, so these will be high priority topics. And आपको कौन सी strategy रखनी है? You have to read. Read में भी novel उठा के नहीं पढ़ना है, आपको sectionals practice कर लो, दिन में एक editorial पढ़ लो. Okay, that should be the kind of reading that you are doing. Okay, you have to read the passages of the sectionals and practice भी हो जाएगी and editorials को भी पढ़ना है. Okay, and for clarifying the grammar concepts, for example, आपको tenses के concepts clear करने हैं, active passive voice पढ़ना है. For this, you can either refer to practice books और यू कैन रेफर टू यूट्यूब सेशंस, जिसमें टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं एंड प्रैक्टिस भी कराते हैं, एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ यू हैव टू बिल्ड एन अप्रोच. सो यू कैन यूज दीज टेक्निक्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश एज वेल. इंग्लिश का मतलब ये नहीं है दैट आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी है. यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश ऑल्सो. द सेकेंड थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में मेजर पार्ट शुड गो टू प्रैक्टिस. ओके, आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, गो टू यूट्यूब, वॉच द लेक्चर्स. उसमें टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं दैट आपको कैसे अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे करना है, एनालिटिकल थिंकिंग में कैसी अप्रोच रखनी है. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द यूट्यूब वीडियोस. सो अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड अप्रोच समझनी है कि कैसे आपको थिंक करना है, रीजनिंग करनी है, देन यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस. बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हो नहीं गया कि हाँ समझ गए, ऐसे सोचना है, ये करना है. आप अपने कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल्ड करते हो, दैट इज जस्ट वन ब्लॉक ऑफ द टॉवर. Every sectional you solve, you are increasing and you know making the foundation even stronger. आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हो. सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करेगा लॉजिकल रीजनिंग में, प्रैक्टिस इज अ मस्ट. Okay, the next subject that we will be talking about is maths, quantitative aptitude. Here is a list of topics that you should know by now. अगर आपको नहीं आता है, then clear the basics, learn the formulas. It sometimes happens that आपको कॉन्सेप्ट पता है, that आपको करना क्या है, but you're not able to do anything because you don't remember the formulas. The formulas are very important. Make a formula sheet as you are learning the concepts. Formulas को लिखते जाओ and go through the sheet before every mock.
ओके हर मॉक के पहले आप इस शीट को एक बार पढ़िए, रिवाइज ऑल द मॉक्स एंड देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस सेशंस आल्सो. यू कैन डू वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड देन यू कैन मूव ऑन टू डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड केसलेट्स. Okay, अगर आपको वन लाइनर्स नहीं करना है then you can do easy DIs and caselets and then move on to a difficult level of difficulty. So here are some of the topics that you should know by now. Okay, these are very high priority, so focus on them. Next, we will move on to the fourth topic of today's session, that is the mocks and the analysis approach. If you want to know how to do a subject-wise mock analysis, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक एनालिसिस समझना है कैसे करना है, अ वीडियो हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द सेम ऑन क्लैटवेव्स यूट्यूब ओनली. ऑन दिस चैनल ओनली आपको वीडियो मिल जाएगा मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं. ओके, सो अ वेरी डिटेल्ड एंड परफेक्टली एक्सप्लेन्ड वीडियो ऑन हाउ टू डू द एनालिसिस. एंड अब आपको मॉक्स कैसे देने हैं. आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 मॉक्स देने ही है एवरी सिंगल वीक. इफ यू आर जस्ट गिविंग 1 मॉक टेस्ट अ वीक, स्टार्ट गिविंग 2 मॉक्स. ओके एंड अगर आप मॉक्स दे ही नहीं रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग दैट काफी टॉपिक्स बचे हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर मॉक्स देंगे, डोंट डू दैट. स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट. अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक करके चलो. यू हैव टू कैरी ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. नेक्स्ट, यू हैव टू एनालाइज देम प्रॉपर्ली एज आई हैव सेड. अगर आप अपने मॉक्स को एनालिसिस नहीं कर रहे हो देन इट इज एज गुड एज नॉट गिविंग अ मॉक टेस्ट एंड नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस एट ऑल. यू हैव टू एनालाइज देम प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग इन अ मॉक एनालिसिस कॉपी. ठीक है, एक मॉक एनालिसिस कॉपी बनाओ. ओके, दिस इज अ नोटबुक वेर यू आर कीपिंग अ नोट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग. एंड हाउ डू यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ देम. यू हैव टू राइट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. व्हाट वाज योर मिस्टेक. आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. व्हाट वाज द मिस्टेक एंड देन यू हैव टू राइट द सोल्यूशन और द करेक्ट लॉजिक कि कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या रीजनिंग होनी चाहिए थी. यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स. एंड ये मॉक एनालिसिस कॉपी भी आप सिर्फ शो के लिए नहीं बना रहे हैं. यू हैव टू रिवाइज या फिर रीड दिस मैक बिफोर एवरी मॉक. ओके, मॉक देने से पहले यू हैव टू रीड ऑल योर मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड. दैट वे यू विल बी कॉन्शियस ऑफ द मिस्टेक्स एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू नॉट रिपीट देम. आप जब करेक्ट लॉजिक बार बार पढ़ते हो तो रॉन्ग लॉजिक आपके मन में कम आता है. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. एंड जो आपके रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं, जो आप बार बार टॉपिक्स मॉक्स में गलत कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टॉर्ट लॉ में कोई टॉपिक है एंड आप उसको लास्ट 2-3 मॉक टेस्ट से वो टॉपिक आपका रॉन्ग जा रहा है. सो यू हैव टू एड दोज रिपीटिंग मिस्टेक्स टू द बैकलॉग चैप्टर्स. दैट हाँ, टॉर्ट में बहुत मिस्टेक्स हो रही है, मे बी आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड एज आई थॉट आई वाज. आप उसको अपने बैकलॉग चैप्टर्स में ऐड कर लो और उसको पढ़ो. And the most important pointer over here is to not be discouraged by the scores at all. Please don't be discouraged at all. आपके जितने भी mocks हैं, especially during this time of the preparation, अब exam pass आ रहा है and many of you giving the mock test of the big coaching institutions. You have to understand that at this point of time वो mock test deliberately difficult level पे बना रहे हैं so that you get up and start studying. Okay, so you don't have to make the mock test define your ability to crack CLAT. These tests are just a practice tool. ठीक है, they are not a final judgment. बिल्कुल भी नहीं है. You have to believe in yourself as well. Next, here is a priority reminder that आपको कैसे अपने next few months spend करने हैं. So September is almost over, so we will talk about October, November एंड दिसंबर. अक्टूबर में आपको अपने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग आपको फिनिश कर देना है इन अक्टूबर इटसेल्फ. मैक्सिमम आप नवंबर फर्स्ट वीक तक अपने बैकलॉग्स और कवर कर लो, बट इन अक्टूबर फिनिश द बैकलॉग्स एज मच एज यू कैन. ओके, अब ज्यादा प्रायोरिटी आपको अपने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को देनी है जो आप पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं. नवंबर में अब आपको अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. आप अक्टूबर में भी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन नवंबर में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. नाउ दैट योर बैकलॉग इज मोस्टली क्लियर, यू विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द प्रैक्टिस एंड द रिविजन. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिसंबर. अब दिसंबर में भी आपको पूरा महीना नहीं मिलेगा. क्लैट इज ऑन 7 दिसंबर, सो यू आर ओनली गेटिंग 1 वीक एंड इवन लेस देन दैट. ओके, 6 दिसंबर को कोई अपनी बुक्स नहीं छुएगा, रेस्ट करना. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है. यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग न्यू. जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया. Next, here is a month-wise strategy. मतलब कि here is a list of topics that you guys can refer to if you are still having problem in making one for yourself. Okay, ये फिर भी overall syllabus के लिए है. So take this just as a guiding tool. Okay, use this sheet to apply to your preparation. आपको अपनी preparation पे focus करना है. Okay, there is no one size fits all for CLAT. Everything is subjective. सबके लिए सब कुछ subjective है. So over here I cannot give you a one size fits all strategy that पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो. That is not possible at all. So this is just a guiding tool of what topics you can study. Next, thank you so much for joining this session. I hope it was helpful and you all enjoyed it. And if you guys have any doubts on how you can, categorize the topics, any doubts, अगर आपको problem आ रही है अपनी strategy बनाने में, then feel free to comment and reach out to us. You can even reach out to us on Telegram personally so that we can give you one-to-one assistance. You can follow us on Telegram at CLATwaves, and we are also available on WhatsApp. A group link is there and it is there in the description box below. Thank you so much for joining. Have a great day.